Hello everyone, greetings of the day. I'm Priyanjali from All About Skin Wellbeing. I'm sure all of you must be keeping good health. We all know taking good care of your skin is important for more than just your appearance. As the largest organ, your skin becomes the most essential to your overall health. A fungal infection is very common on your skin or nails. Fungal infections or mycosis are diseases caused by a fungus, yeast, or mold. Mild fungal infections can look like a rash, can be itchy and annoying. So let's connect today with our skin expert, Dr. Parul Garg, live from Bhatinda to enlighten us on the topic of fungal infection and its management. Dr. Parul Garg is MBBS, MD Dermatology, ex AIMS Bhatinda, ex SGMH Delhi, ex GMC Amritsar. Today, Dr. Parul Garg will share with us on fungal infection and its management. Welcome, doctor, to today's platform. The first question and the most usual question for you would be, what is fungal infection? Hello, good afternoon. Thank you for this opportunity. So, basically, superficial fungal infections are of two types. One is dermatophytic infection, which is also known as ringworm, and second is candidiasis. Starting with first, most common, which is dermatophytic infection. So, basically, the fungal infection in this case is also known as ringworm. And to explain this, if this is the ring, the patch is seen as red, annular, or circular patch with activity at the border. So basically, the fungus, the infection is active at this border. So even I tell my patients to use any kind of treatment that we prescribe at this border because the infection is active over this point. And even I tell them to apply the ointment over this border and they should go more 2 centimeters beyond this border so that the infection which is spreading at the periphery should get killed. Right, right. So, doctor, what does the initial stage look like? Uh, Initially, when we have the lesion in our skin, so how does it look like? How does one know that he or she is having fungal infection? Yes, like I have already explained, the lesion can start as one red spot, which increase in Hmm. the size at the periphery. Like it can start at this one point and it will increase in size and go to the periphery. And this and in this way, the lesion increases in size. So, what will be the cause behind it? So this fungus, the dermatophytes are the most common cause of this tinea infection. And in this we have trichophyton, epidermophyton, mentacrophytes. These are basically the various types of fungus which causes this dermatophytic infection. Right, right. Doctor, now that we know the cause behind it, and how does it look like? How does the initial stage look like? So how do we take care of this fungal infection? Okay, so there are certain preventative measures that one should look for, one should use on daily basis to prevent this infection. Number one is, as this infection is mainly because of hot and humid climate. So I advise my all of the patients to avoid such kind of environments. And if they are at all exposed to such environments, maybe because of occupation, then they must take at least bath twice a day and rub the skin after taking baths. The thing is, ki what they do is they clean their body, but they forget these spaces, and the moisture gets trapped in the finger web spaces, toe web spaces, and this lead to infection. Right. Doctor, mentioning about hot and humid region, I stay in a hot and humid region. Also, I think you're from Bhatinda. Bhatinda itself is Yes, a hot and humid hot. region. So what do we see? More patients in such areas suffering with the same? Yes. So basically, there are different types of tinea or dermatophytic infection. One of the most common site is groins, armpits. Basically, the Hmm. areas where moisture, that nami जो बेसिकली आ जाती है कुछ एरियाज में जैसे कि फिंगर वेब स्पेसेस होती हैं टू वेब स्पेसेस होती हैं बटक्स होती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दीज आर द मोस्ट कॉमन Hmm. साइट्स बच्चों के केस में स्कैल्प पे भी टीनिया देख फंगल इन्फेक्शन देखा जाता है
जी। डॉक्टर हम फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे बॉडी की अलग-अलग जगह में ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो क्या ये इन्फेक्शन हर जगह में सेम दिखता है या इसका ऑकरेंस थोड़ा-सा डिफरेंट हो सकता है? बिल्कुल, अगर तो देखो ये बॉडी पे है, इफ इट इज़ प्रेजेंट ओवर बटक्स, ग्रोइन्स, आर्मपिट्स, तो इट इज़ सीन एज़ दैट एनुलर पैच दैट आई जस्ट एक्सप्लेन्ड। बट इफ इट इज़ राइट। प्रेजेंट ओवर पाल्म्स एंड सोल्स, देन द लीजन तो जो निशान है वो पानी की दाने की तरह, स्केलिंग, सिकरी की तरह भी देखे जा सकते हैं। और अगर ये स्कैल्प हुँ, में हो, जो बच्चों के केसेस में होता है कि स्कैल्प पे फंगल इन्फेक्शन बच्चों के केसेस में ज़्यादा रहता है, तो उस केसेस में इट कैन बी हुँ, सीन एज़ हेयर लॉस की तरह भी देखा जा सकता है। दे कुड बी स्केलिंग, हुँ। सिकड़ी सिर पे हो सकती है, डैंड्रफ की तरह भी दिख सकता है सिर पे बच्चों में। जी, जी। और नेल्स भी आपने मेंशन किया, तो नेल्स में कैसे किस प्रकार से हाँ, होता है ये लीजन? द थिंग इज़ कि एक बहुत रेजिस्टेंट एरिया है नेल्स, अगर बॉडी पे हुँ, ओवरलुक हो जाता है कई बार और पेशेंट्स ठीक से ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते हैं, तो नेल्स में भी कई बार रह जाता है। तो नेल्स में बी इट टो नेल्स और फिंगर नेल्स, क्या हो सकता है येलोइश और ब्लैकिश डिस्कलर्ड नेल्स की फॉर्म में हो सकता है। एंड अगर ये प्रोग्रेस करता है एंड इट इज नॉट गेटिंग ट्रीटेड, लाइक अगर हम इलाज नहीं कराते हैं, तो इसमें क्या होता है, नेल्स ब्रेक होने भी शुरू हो जाते हैं, नेल्स के अराउंड की स्किन हुँ, में स्वेलिंग भी आ सकती है। हुँ। तो नेल्स के बारे में अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो नेल्स में क्या औरतों में स्पेशली देखा जाता है क्योंकि पानी का इस्तेमाल वो लोग बहुत Yes, ज़्यादा अतिरिक्त करते हैं yes, मे बी, हाउसवाइफ्स yes. में भी स्पेशली? Basically, yes, because of frequent exposure to the water for cleaning activities, like अगर जैसे बर्तन धोते हैं, washing clothes, इन सब चीजों में उनका वाटर एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से दे हुँ, आर इन दिस मॉइस्चर दैट नमी ऑल द टाइम, जिसकी हुँ, वजह से होम मेकर्स में बहुत ज्यादा देखा जाता है हैंड्स पे जी। फंगल इन्फेक्शन। तो उन केसेस में आई एडवाइज देम कि आप ग्लव्स पहन के ये काम करें, सो दैट दैट एक्सपोजर हुँ, इज गेटिंग हुँ। कट। राइट, राइट। और जैसे कि हमें पता है कि फंगल इन्फेक्शन कंटेजियस होता है, हम सभी को ये चीज़ पता है, बच्चों को भी पता है कि फंगल इन्फेक्शन कंटेजियस होता है। तो हाथ में होना कितना हानिकारक हो सकता है? डॉक्टर इफ समबडी इज़ हैविंग इट इन देयर नेल्स एंड उनके घर पे पूरा फैमिली को ये स्प्रेड हो सकता है, तो उनके फैमिली मेंबर्स क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए फंगल इन्फेक्शन से? बेसिकली आपने जैसे बोला, जो फंगल इन्फेक्शन है वो कॉन्टेजियस है, तो विद क्लोज हुँ, फिजिकल कांटेक्ट, क्लोज कांटेक्ट से बहुत जल्दी फैलता है। तो सबसे पहले अगर हुँ, किसी को नेल इन्फेक्शन है, या तो वो ऐसा कोई काम ना करें जिससे वो दूसरों को फैले। दूसरा, नेल्स को ट्रिम करके रखें। क्या होता है कि हम बड़े नेल्स रखते हैं तो चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो हुँ, कट योर नेल्स शॉर्ट। उसके अलावा क्या कर सकते हैं कि जो अपना जो कपड़े हैं, जो अपने टाल हैं, सोप्स हैं, वो अलग रखें बाकी फैमिली मेंबर्स से। और हो सके तो अपनी क्लोथ्स अलग ही वॉश करें, द वन हु इज इन्फेक्टेड उनका अलग से ही वॉश किया जाए, उनके कपड़े बाकियों से डिफरेंट हो। बिल्कुल शेयरिंग ना हो, तो इससे काफी इम्प्रूवमेंट आता है और दूसरों में फैमिली में नहीं फैलता। जी, जी। डॉक्टर स्पेसिफिकली नील के बारे में हम बात कर रहे हैं। नील में एक और चीज़ मैंने देखा है अपने ही दैनिक जीवन में एक ब्लैक कलर का लाइन जैसा क्रिएट हो जाता है, मे बी सम रूट कमिंग आउट फ्रॉम द नेल और नेल का अनइवन टेक्सचर अक्सर बुजुर्गों में भी हम देखते हैं कि नेल थोड़ा-सा हार्ड हो जाता है, अनइवन टेक्सचर हो जाता है। उसका कारण क्या है? वैसे तो देखो, ऐसे ब्लैक लाइन्स होने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, इट्स नॉट जस्ट फंगस। हुँ, बट इफ द हुँ, टेक्सचर इज चेंजिंग एंड जो नेल है वो थिक हो रहा है, अगर आप देखें अच्छे से चेक किया जाए तो नेल की थिकनिंग आती है, तो देर इज फंगस ग्रोइंग बीनीथ द नेल सर्फेस, नेल प्लेट के नीचे आ रहा होता है, दैट इज फंगस विच इज ग्रोइंग आउट, जिसकी वजह से वो येलोइश या वो ब्लैकिश कलर जो हमें ऊपर से विजिबल होता है। जी। तो क्या ये क्योर हो सकता है ईज़िली और थोड़ा टाइम लगता है इसे? डेफिनेटली ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। नेल का फंगल इन्फेक्शन बहुत अच्छे से ट्रीट हो सकता है, बट देयर इज वन थिंग जो ध्यान में रखना है, लोग ट्रीटमेंट जल्दी छोड़ देते हैं। जो नेल्स है उनका ग्रोथ साइकिल थोड़ा स्लो होता है, लाइक अगर हम फिंगर नेल्स को देखें तो यहाँ से लेके बाहर तक, लाइक आउट होते होते नेल को 6 to 9 मंथ्स लग जाते हैं फिंगर नेल्स को, और टो नेल्स को 9 to 12 मंथ्स लग जाते हैं। तो जो ट्रीटमेंट कोर्स है थोड़ा प्रोलॉन्ग रहता है। प्रॉब्लम क्या आती है, लोग हुँ, बीच में ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, या जो प्रिवेंटिव मेजर्स है जी, बीच में से लेना बंद कर देते हैं, दे फील कि ट्रीटमेंट हो चुका है एंड वी आर ऑल डन विद द जी, ट्रीटमेंट। उससे वो रिलैप्स, जी। री इन्फेक्शन और
दोबारा से फंगस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, जी। डॉक्टर, क्योंकि ट्रीटमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या-क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है अभी करंटली फॉर फंगल इन्फेक्शन? Yes. Basically, treatments are available in the form of antifungal treatment and supportive treatment. Supportive treatment में आएगा कि पेशेंट को बहुत itchy lesions होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा खारिश होती है पेशेंट को, तो हम एंटीहिस्टामिन, एंटी एलर्जिक साथ में प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इज एंटीफंगल्स। इसमें वी हैव ओरल ट्रीटमेंट एंड टॉपिकल, मतलब खाने की एंड कुछ लगाने की दवाएं हैं जो अवेलेबल हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट, लाइक अगर पेशेंट लैक्टेटिंग है, प्रेग्नेंट है, या एल्डरली है, या कार्डिक इशू है, या हेल्दी एडल्ट है, उसमें ट्रीटमेंट थोड़ा वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। तो खाने की दवाई डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट हम डिसाइड करते हैं। एंड देयर आर फ्यू टॉपिकल ट्रीटमेंट्स जो साथ में हम एडवाइस करते हैं। राइट, राइट। अ, डॉक्टर, ट्रीटमेंट्स के बारे में हमने जाना। बच्चों में कैसे हम ये फंगल इन्फेक्शन रोक सकते हैं? ये बड़ी चिंता के विषय है, क्योंकि स्कूल तो भेजना पड़ेगा, खेलने भी बाहर भेजना पड़ेगा, घर पे रख नहीं सकते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, उतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते हैं बच्चे, या उतना है नहीं उनको आइडिया कि कितना वर्स्ट हो सकता है सिनेरियो। तो कैसे हम बच्चों का देखभाल करें और कैसे उन्हें हम रोकें फंगल इन्फेक्शन होने से? बेसिकली द मेजर्स आर सेम। क्या है कि जैसे हमने बड़ों में बोला कि हाइजीन मेंटेन करना है, वैसे बच्चों के केसेस में भी हमें हाइजीन मेंटेन करना है। लाइक वही हुँ, वी हैव टू टेल देम टू टेक बार डेली। अगर आप वो बाहर कुछ फिजिकल एक्टिविटीज स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, तो आके वो एक अपना शावर लें, नहाएं, उसके बाद अच्छे से क्लीन करें अपनी बॉडी पार्ट्स को, गीला ना रहने दें। मॉइस्चर की वजह से ही इसने आना है। सो अगर हम मॉइस्चर अच्छे से हुँ, कंट्रोल रखेंगे बच्चों में भी, इवन आफ्टर लाइक दे आर प्लेइंग आउट, दे आर कमिंग बैक, एंड थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखें उस दौरान, तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आता है। जैसे बच्चे स्कूल में पूरा दिन होते हैं एंड दे वियर दोज शूज, उसकी वजह से भी कई बार पैरों में मॉइस्चर ज्यादा आता है। व्हाट वी कैन डू इज कि जब वो घर वापस आते हैं, एज सुन एज पॉसिबल हम शूज निकाल दें, उनके पैरों को एयर ड्राई होने दें। दिस इज समथिंग विच विल ग्रेटली हेल्प देम। राइट, राइट। एक और बात डॉक्टर, आपने एयर ड्राई कहा, तो एक और बात हम सभी पूछना चाहेंगे। ये कपड़े जो धुले जाते हैं, स्पेशली आप सपोज फैमिली में कोई भी एक जन है जो सफर कर रहे हैं फंगल इन्फेक्शन से, तो सारे कपड़े एक साथ धोना ये हार्मफुल हो सकता है, और धोने के बाद धूप में सुखाना कितना जरूरी है, आप अगर बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे बहुत फर्क पड़ता है। स्पेशली अगर एक हम्म, मेंबर को इन्फेक्शन है, वो दूसरों को नहीं जाएगी अगर हम अलग से धोएंगे उनके कपड़े। जो बाकी हैं वो हम्म, एक तरह से प्रोटेक्टेड रहेंगे फ्रॉम दैट इन्फेक्शन। उसके अलावा अगर हम धूप में, मैं हमेशा अपने हर पेशेंट को ऑलमोस्ट एडवाइस करती हूँ कि वो हर अपना कपड़ा ऊपर से लेके अंदर तक का गर्म पानी में धोएं, धूप लगवाएं, और हो सके तो आयरन करें। अपना हर कपड़ा प्रेस करके पहने, इससे चांसेस ऑफ री इन्फेक्शन काफी कम हो जाता है। जी, जी। और अक्सर हम देखते हैं कि ये मॉनसून सीज़न में बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं। मेबी कपड़ों की वज़ह से ही, क्योंकि कपड़े अच्छे से सूख नहीं रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि अगर धूप नहीं है तो आयरन तो बिल्कुल ज़रूर करना ही है सबको। बिल्कुल। और वो कपड़ा लाइक दे कैन व्हाट दे कैन डू इज कि वो रीवियर ना करें वो कपड़े फॉर सम डेज। जी, लाइक वो जी। कुछ उसका जो साइकिल अपने क्लोथ्स चेंज करने का थोड़ा बढ़ा दें, लाइक 4-5 दिन के ब्रेक के बाद उसको फिर रीवियर करें। ये एक चीज़ है जो ऐड की जा सकती है इसके साथ-साथ। जी, जी। जी, डॉक्टर, रीवेयर से वेरी मच कनेक्टेड, आजकल लोग बहुत फिजिकल कॉन्शियस हैं, बहुत फिटनेस कॉन्शियस है। तो जिम के कपड़े तो उतने सारे होते नहीं है, जिम के कपड़े रिपीट ही होते हैं, और अक्सर हम देखते हैं कि पहले दिन का कपड़ा लोग पहन लेते हैं, थोड़ा सा पसीना ही लगा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो जिम गोअर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कितना जरूरी है हाइजीन मेंटेन करना और किस प्रकार करना चाहिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जो आपने कहा, बिकॉज़ वो बहुत टाइट फिटिंग सिंथेटिक उनका होता है जो जी। जिम वियर वो यूज़ करते हैं, दैट इज़ द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। आई विल हुँ, नेवर एडवाइस समवन विद फंगल इन्फेक्शन टू आई वुड से जस्ट स्किप योर जिम और व्हाटएवर, बट ये टाइट फिटिंग क्लोथ्स हुँ, नहीं पहनना, आपको लूज़ ब्रीथेबल कॉटन का ही
फैब्रिक यूज करना है। और उसके साथ साथ हुँ, जिम या पब्लिक प्लेसेस या पूल्स में कई बार कैसे होता है कि दे वॉक बेयरफुट। आपको नंगे पैर नहीं घूमना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जी, बिकॉज बिकॉज ऑफ फोमाइट सर्फेसिस में भी फंगस होता है एंड पैरों पे एथलीट्स को जिसको कहते हैं या पैरों में टीनिया पेडिस एक नाम का फंगल इन्फेक्शन है, वो हो जाता है। तो पैरों में फंगस के चांसेस बढ़ जाते हैं जो इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो आई ऑलवेज टेल देम टू वियर अ फुटवेयर व्हाइल दे आर वॉकिंग इन दीज पब्लिक प्लेसेस। जी, जी। अ, कंटिन्यूइंग द टॉपिक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर, जिम गोअर्स, मैंने हाल-फिलहाल में किसी को देखा कि हाथ में थंब फिंगर में स्पेशली उनका थोड़ा-सा लीजन हो गया है एंड ब्लैक ब्लैक मार्क्स आ गया है। प्रोबेबली द डॉक्टर हैज़ सेड कि फंगल इन्फेक्शन ही है। तो शायद जिम में किसी और का मशीन में, जैसे बहुत लोग मशीन्स यूज़ करते हैं, जो भी जिम के मशीन्स है, तो शायद स्वेट से स्प्रेड हुआ है या किसी के फिजिकल टच से स्प्रेड हुआ है, बट इट हैज स्प्रेडेड फ्रॉम द जिम। तो ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं पेशेंट्स, अपने आप की बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो फंगल इन्फेक्शन जैसे आपने अभी हम कब से डिस्कस करें, इट इज कॉन्टेजियस, तो स्प्रेड होने के यस। चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले तो हुँ, जिसको इन्फेक्शन है, विच इज द सोर्स, विच इज द हुँ, प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, विल वी शुड एडवाइज देम प्लीज अवॉइड जिम एटलीस्ट फॉर फ्यू डेज। जब आपका यस, एडिक्वेट ट्रीटमेंट हो गया है उसके बाद ही आप जिम या ऐसी पब्लिक प्लेसेस में जाएं। बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ताकि वो दूसरों को ना राइट, स्प्रेड हो। राइट, राइट, राइट। डॉक्टर, उनके लिए ही अगर आप बोलना चाहें कि कितना सीरियस हो सकता है ये फंगल इन्फेक्शन, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? So basically, the quality of life is getting compromised in this case. Patient बहुत ज़्यादा itching कर रहा है, काम नहीं कर पा रहे, concentrate नहीं कर पा रहे, तो yes, quality of life is getting compromised. Number one. Number two is if the fungal infection is present over here, over scalp, तो hair loss के chances हो जाते हैं। और किसी किसी केसेस में अगर hygiene properly maintain नहीं है, तो scarring hair loss भी हो सकता है। मतलब कि chances of hair coming back भी निग्लिजिबल हो जाता है। कई बार वो पूरा स्कार हो जाता है एरिया, फिर हेयर लॉस रहता है, परसिस्ट करता है, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। दिस इज समथिंग व्हिच इज सीरियस बिकॉज़ इफ देयर इज स्कारिंग ओवर स्कैल्प, वो हेयर लॉस कभी नहीं ठीक हो पाएगा। तो इसको सीरियसली हुँ। लेना चाहिए। इफ देयर इज सम स्किन प्रॉब्लम, I think from my behalf, I think you should tell them, please visit a dermatologist if you have any skin related issue. राइट, वी ऑलवेज सजेस्ट आवर व्यूअर्स, आवर पेशेंट्स, कि कोई भी चेंजेस, कोई भी बदलाव अगर नजर आ रही है आपको अपने शरीर में, इमीडिएटली विजिट द एक्सपर्ट। डॉक्टर, सेल्फ मेडिकेशन कितना हार्मफुल हो सकता है, अगर आप हमें बताना चाहें, हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें? सेल्फ मेडिकेशन इंडिया में तो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आई टेल यू समथिंग। Initially, when we used to study 5, 6 years, 7 years back, the fungal infection was used to getting treated with like 2 to 4 weeks course रहता था और हुँ, antifungals लेते थे और पेशेंट ठीक हो जाता था। At this point, over months we are giving antifungals और कुछ केसेस में रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं आता। इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज सेल्फ मेडिकेशन। या हुँ, अपना कोर्स लोग बनाते हैं, दे डू नॉट टेक ऑल द एडवाइस, ऑल द ट्रीटमेंट सजेस्टेड बाय द डॉक्टर। और उसकी वजह से क्या होता है, व्हाट दे डू इज दे टेक द ट्रीटमेंट फॉर 10 डेज, देन दे थिंक कि अब तो ठीक हो गया, दे स्किप द ऑल द कोर्स जो एडवाइस किया गया था। एंड आफ्टर 3 वीक्स और सो जब फंगस क्योंकि प्रॉपरली ट्रीट नहीं होता तो वापस आ जाता है। तो एक रेजिस्टेंस आ गई है इसकी वजह से। एंड फंगस का हुँ, जो हुँ, कोर्स है, जो इन्फेक्शन का जो ट्रीटमेंट है, वो प्रोसेस बहुत प्रोलॉन्ग हो गया है। सेकेंडली, टॉपिकल स्टेरॉइड एंड एंटी फंगल कॉम्बिनेशन बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। तो क्या होता है, थोड़ा सा कुछ फंगस का पैच आया, पेशेंट अपने आप से केमिस्ट से जाके ट्यूब लेगा, वो लगाएगा एंड बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स को सप्रेस हो जाएगा। लेकिन आफ्टर फ्यू डेज वो बढ़ के आएगा, बहुत ज्यादा आएगा बिकॉज फंगस खत्म तो हुआ नहीं था, इट वाज ओनली गेटिंग सप्रेस्ड। तो दिस इज द थिंग आई थिंक डेली बेसिस पे हर डर्मेटोलॉजिस्ट ये देखते होंगे कि एक ना एक स्टेरॉइड की ट्यूब लगा के लोग आते हैं एंड फंगस हुँ। इज इंक्रीजिंग विद एवरी पासिंग डे। राइट, राइट, मतलब ये इतना बेसिक चीज है और लोग बार बार ये किए जा रहे हैं। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? आप पैसा बचाना चाह रहे हैं, आप अपना समय बचाना चाह रहे हैं, आप अपना एफर्ट बचाना चाह रहे हैं, पर अल्टीमेटली अगर आप देखें
तो हर चीज़ ज़्यादा हो रहा है, पैसा आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है, आपका समय भी ज़्यादा जा रहा है, आपका एफर्ट भी जा रहा है और अल्टीमेटली आप अपने हेल्थ को रिस्क पे रख रहे हैं यस। यहाँ। तो प्लीज़ केमिस्ट के पास तो ना जाए, केमिस्ट के पास डिग्री नहीं है, अदरवाइज़ वो डॉक्टर ही कहलाते हैं ना। We have our experts always to help you out with the best possible solutions. Please don't do that. अपने शरीर को रिस्क पे ना रखें, चाहे कैसा भी circumstances हो. Do not put your health at risk. That's what we are trying to say. We are in discussion with Dr. Parul Garg today, and we are discussing about फंगल इन्फेक्शन एंड हाउ वी कैन कंट्रोल इट। डॉक्टर, हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की ओर। ये एंटी फंगल्स जो हम देते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर लॉन्ग टर्म एंटी फंगल्स कोई यूज करता है तो? अगर तो पेशेंट द डोज विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर वही यूज कर रहे हैं, उतना ही ले रहे हैं और उतने समय के लिए ले रहे हैं तो कुछ दिक्कत नहीं आती। बट बहुत बार क्या होता है, मुझे प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा दिखता है कि पेशेंट डबल डोज ले रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर विश। दे आर टेकिंग रॉन्ग डोजेस एंड रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग्स। वो खुद से ही केमिस्ट से उठाते हैं बिकॉज दे सॉ कि उसको ठीक हुआ था इस दवाई से, तो दे स्टार्टेड हाँ। यूजिंग दैट थिंग ऑन देयर ओन। उसकी वजह से दिक्कत डेफिनेटली आ सकती है। लेकिन अगर हम प्रिस्क्राइब डोजेस में प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरेशन के लिए अगर ट्रीटमेंट देते हैं तो दे आर सेफ। हम देते हैं पेशेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर हेल्थ इश्यूज। जैसा उनको सेट बैठता है वैसा ही ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है। लाइक प्रेगनेंसी में डिफरेंट तरह का एंटीफंगल हम देते हैं विच इज सेफ फॉर देम, एंड एल्डरलीज में हम थोड़ा डिफरेंट तरह का एंटीफंगल देते हैं। अगर किसी को कोमॉर्ब्स है, किसी को कोई डायबिटीज है, कार्डियक इशू है, तो अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन वी एडवाइस द ट्रीटमेंट विच इज सेफ टू देम। राइट। डॉक्टर, आपने कह दिया डायबिटीज, ऑलरेडी मेरे दिमाग में अभी एग्जैक्टली वही चल रहा था कि डायबिटीज पेशेंट के लिए ये फंगल इन्फेक्शन कैसा हो सकता है? थोड़ा डिफरेंट तो होगा ही सिनेरियो ऑब्वियसली सबसे। Um, क्या होता है, डायबिटीज इज अ कंडीशन वेयर द इम्यूनिटी इज compromised, immunity is suppressed, हम्म। so chances of getting infection is more one, and the infection is more severe in these cases. तो स्किन इन्फेक्शन लंबा समय लेके ठीक होती है, बढ़ जाती है, और इसके साथ साथ कुछ और फंगल इन्फेक्शन है जैसे कैंडिडा होता है, वो भी उनमें भी बढ़ने के चांसेस होते हैं, स्पेशली इन डायबिटीज पेशेंट्स। राइट। वेल, डायबिटीज पेशेंट्स स्पेशली आप लोग थोड़ा सा कॉशियस तो आपको रहना पड़ेगा। अपने डाइट का, अपने हेल्थ का, अपनी लाइफस्टाइल का ख्याल तो रखना पड़ेगा। और बाकी स्ट्रेस की बात ही नहीं है, बिकॉज हमारे एक्सपर्ट्स हमेशा मौजूद है। विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर, ये फंगल इन्फेक्शन बार बार क्यों आता है? ये सवाल सबके दिमाग में होगा। परेशान होंगे लोग बहुत, ये सोच के कि ठीक हो रहा है, फिर से आ जा रहा है, फिर से ठीक हो रहा है, फिर से आ जा रहा है, तो क्यों हो रहा है ये? इसका सबसे सबसे बड़ा कारण ये है कि पेशेंट पूरा ट्रीटमेंट नहीं लेता। वो कुछ देर के लिए लेता है फिर छोड़ देता है, या खाने को तो वो एंटी फंगल सही ले रहा है बट साथ में स्टेरॉइड की ट्यूब्स लगा देता है बिकॉज वो विद इन अ डे और टू सब सप्रेस कर देती है। तो इसलिए वो जो फंगस का साइकिल है वो ब्रेक नहीं होता। कुछ समय के लिए देर इज सम इम्प्रूवमेंट, देन इट कम्स बैक। तो ये एक साइकिल चलता रहता है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर एवरीथिंग इज अवेलेबल ओटीसी। तो लोग ले लेते हैं जिसकी वजह से साइकिल से बाहर नहीं निकल पाते। सेकेंड, कई बार फैमिली हिस्ट्री होती है, लाइक देयर इज इन्फेक्शन इन द हाउस, पेशेंट तो ट्रीट हो गया बट घर में वो रह गई तो वो री इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। या कई बार क्या होता है बिकॉज हुँ। ऑफ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट जैसे हमारा है, उसमें वो पसीना नमी का परहेज थोड़ा सा चूक जाता है जिसकी वजह से चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन फिर से बढ़ जाता है। राइट, राइट। डॉक्टर, अगर हम बात करें फंगल इन्फेक्शन फेस में, जिनके फेशियल एरिया में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये ओवर द काउंटर मेडिकेशंस या स्टेरॉइड्स के बारे में अगर हम बात करें तो आजकल बहुत सारे पेप्टाइड्स हो, रेटिनॉइल ऑयल है, बहुत सारे ऑयल स्किन केयर प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं। तो क्या वो प्रोडक्ट्स यूज़ करना सेफ होगा उनके लिए, पेशेंट्स के लिए? डेफिनेटली व्हेन देयर इज इन्फेक्शन गोइंग ऑन, तो ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स, सिरम्स इरिटेट कर सकते हैं स्किन को थोड़ा ज्यादा। और ऑयल्स तो बिल्कुल हम एडवाइस नहीं करते, स्पेशली अगर फेस हेड एंड नेक एरिया पे फंगस है तो ऑयल से हुँ। देयर इज अ चांस ऑफ फंगस गेटिंग एग्रोवेटेड। तो डेफिनेटली वी एडवाइज देम नॉट टू यूज एटलीस्ट व्हेन दे आर टेकिंग दिस ट्रीटमेंट। उनको कोर्स फिनिश करने दें, लेट द इन्फेक्शन गो, फिर
दोबारा से वो अपना प्रोडक्ट्स जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, फिर वो स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, व्हाट अबाउट मेकअप डॉक्टर? हम औरतों को तो स्पेशली बहुत जरूरत होता है मेकअप का, और काफी सारे लोग जो प्रोफेशन, एक पर्टिकुलर प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं जहाँ मेकअप जरूरी है उनके लिए, तो आप अपने पेशेंट्स को क्या सजेस्ट करते हैं, मेकअप या नो मेकअप? मैं तो अपने पेशेंट्स को एडवाइस करूँगी बिल्कुल नहीं वो मेकअप यूज़ करें, बिकॉज़ कई बार मो उससे पसीना, नमी, एक मॉइस्चर दोबारा से रिटेन होने लग जाता है ओवर दैट एरिया बिकॉज़ ऑफ मेकअप्स। कुछ अगर कई बार वो फाउंडेशंस यूज़ कर सकते हैं, उससे स्वेटिंग या चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं इरिटेशन के। तो उसकी वजह से मैं तो एडवाइस करती हूँ प्लीज़ नो मेकअप एटलीस्ट फॉर सम डेज़, एक बार वो सेटल हो जाए फिर आप स्टार्ट कर लें। दिस इज़ माय पर्सपेक्टिव। जी, तो अभी अभी फ़िलहाल बहुत लोग सोच रहे होंगे तो क्या लगाएँ स्किन में? सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है डॉक्टर, और एक बेसिक मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है। स्किन क्लेंज़ करना भी ज़रूरी है। तो क्या ये तीनों चीज़ हम सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को? इज़ इट सेफ अगर वो लोग ये 3 स्टेप यूज़ करें डेली? यस, दे कैन यूज़ अ लाइट वेट मॉइस्चराइज़र, बहुत ज़्यादा स्टिकी, ऑयली मॉइस्चराइज़र ना वो यूज़ करें, लाइक आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, बहुत लाइट वेट मॉइस्चराइज़र वो हुँ, यूज़ कर सकते हैं। एंड सनस्क्रीन इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ बिकॉज़ ऑफ दैट एक्टिविटी देयर इज़ ऑलरेडी कई बार जैसे पेशेंट्स कलर ट्यूब्स लगा रहा होता है, तो उसकी वजह से एट्रोफी या थोड़ी स्किन थिनिंग आ चुकी होती है, तो सनस्क्रीन उसमें बहुत अच्छा काम करता है। एक तरह से वो बैरियर का काम करता है एंड द स्किन जो रिपेयर है, वो थोड़ा एनहांस हो जाता है। तो सनस्क्रीन तो मैं नहीं मना करूँगी। जी, जी। वेल नाउ हमें पता है कि स्किन का ख़्याल कैसे रखें, स्पेशली फॉर पेशेंट्स हू आर सफरिंग फ्रॉम फंगल इन्फेक्शन ऑन देयर फेस। मूविंग अहेड, डॉक्टर, अगला सवाल आपके लिए ये है कि इज़ देयर अ वे आई कैन प्रिवेंट गेटिंग रिंगवर्म ऑन माय फीट फ्रीक्वेंटली? इसके लिए हम 2 चीज़ें हैं जो हमें करनी है। एक तो ट्राई टू यूज़ लूज़ फुटवियर। कई बार क्या होता है वी टेंड टू यूज़ वेरी टाइट फिटिंग शूज़, जिसकी वज़ह से, और उसके बाद सॉक्स भी होते हैं, जिसकी वज़ह से मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है। देयर इज़ वन थिंग आप लूज़ इफ पॉसिबल, इफ योर वर्क अलाउज़, व्हाट यू कैन डू इज़ आप खुली जूती, चप्पल पहन सकते हैं, स्लीपर्स पहन सकते हैं इफ योर जॉब प्रोफाइल अलाउज़ इट। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आपकी जॉब प्रोफाइल नहीं अलाउ करती कि आप लूज़ फुटवियर पहन सकें, तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप जब भी काम कर रहे हैं, आप वन्स इन अ व्हाइल व्हेनेवर यू गेट टाइम, आप अपने शू सॉक्स निकाल के थोड़ा-सा पैरों को हवा लगवाएँ। दिस इज़ वन थिंग दैट यू कैन डू एंड दैट यू शुड डू इफ यू आर यूजिंग टाइट वियर शूज़। एंड राइट, सेकेंडली आप क्या करें कि आप नंगे पैरी, जैसे मैंने पहले बोला, बेयरफुट ना घूमें। यूज़ सम फुटवियर व्हेनेवर यू आर गोइंग ऑन सम पब्लिक प्लेसेस, कोई पूल्स में, स्विमिंग पूल्स में जाते हैं, तो नंगे पैर बिल्कुल ना जाएँ, कुछ फुटवियर ज़रूर पहनें, सो दैट पैरों में इन्फेक्शन के चांसेस उससे काफ़ी कम हो जाते राइट, राइट। डॉक्टर, आज हम फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, और एक सवाल, एक कन्फ्यूजन आई थिंक सबके दिमाग में होगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन में क्या अंतर है? व्हाट इज़ द डिफरेंस? हम नॉर्मली कन्फ्यूज़ करते हैं। हैं। सो बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इन केसेस में जो स्पॉट्स होते हैं वो पुरुलेंट होते हैं, पस फिल्ड स्पॉट्स होते हैं, कई बार ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, पस फिल्ड बच्चों में बहुत कॉमनली हो जाते हैं, इम्पेटाइगो कहते हैं, वो हो जाता है। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड द फंगल इन्फेक्शन इज़ कॉज्ड बाय फंगस, डर्मेटोफिटिक इन्फेक्शंस। सो ये दोनों डिफरेंट हैं और इनका ट्रीटमेंट भी दोनों का डिफरेंट है। जैसे फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वी गो फॉर एंटीबायोटिक्स, फॉर फंगल इन्फेक्शन वी गो फॉर एंटी फंगल ड्रग्स। राइट, राइट। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन पेनफुल होता है, हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अगर दिखे अपनी स्किन में? तो हाउ डू वी नो कि ये फंगल इन्फेक्शन है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? एक लेमैन लैंग्वेज में कैसे समझ में आएगा हमें? बिल्कुल। जो फंगल इन्फेक्शन है, जैसे हमने बात की थी कि वो एक राउंड पैचेस की तरह दिखता है, जो कॉमन डर्मेटोफिटिक इन्फेक्शन जिसको रिंगवॉर्म कहते हैं, वो रिंग की तरह हमें निशान दिखते हैं, वो रेड पैचेस होते हैं जो बहुत इची होते हैं। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के निशान होते हैं वो पस फिल्ड, उसमें से मवाद, पेनफुल लीजन्स होते हैं, उसमें से मवाद, पस निकलने का रहता है, तो ये पुरुलेंट से लीजन्स होते हैं और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरह, कई बार ये गांठों की तरह, कई बार ये ब्लिस्टर्स की तरह दिखते हैं। राइट, राइट। डॉक्टर,
वजाइनल एरिया में फंगल इन्फेक्शन आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, या ग्रॉइन एरिया में हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। पब्लिक टॉयलेट्स आजकल बहुत यूज़ करना पड़ रहा है सबको, शायद काम की वज़ह से या ऑफ़िस में भी ब कॉमन टॉयलेट्स ही यूज़ करना पड़ता है। तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स वो यूज़ कर सकते हैं ऑफ़िस गोअर्स, नॉर्मल ऑफ़िस गोअर्स, और या जो पब्लिक टॉयलेट्स रास्ते में यूज़ कर रहे हैं? वही बेसिकली पब्लिक टॉयलेट्स की वजह से चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन बीट कैंडिडा और बीट डर्मेटोफिटिक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। हुँ, तो व्हाट वी कैन डू इज़ आज के टाइम पे पहले तो नहीं था शायद, अभी आज के टाइम पे देयर आर स्प्रेज, पी प्रोटेक्टर्स, टॉयलेट कवर्स, सीट कवर्स आर अवेलेबल दैट वन कैन कैरी। अगर कोई बाहर रहता है जिसका ऑन एंड ऑफ रहता है, बाहर जाने का ट्रैवल रहता है, तो दे व्हाट दे कैन डू इज़ फीमेल स्पेशली अपने पास ये रख सकती हैं, दे कैन यूज़ अकॉर्डिंगली, स्पेशली जो ऑफिस में यूज़ करते हैं टॉयलेट्स, क्योंकि एक दूसरे से स्पेशली अगर कोई पेशेंट कोई गया जिसको फंगल इन्फेक्शन थी एंड बिकॉज़ ऑफ दैट कॉन्टैक्ट द सेकंड पर्सन कैन गेट सेम इन्फेक्शन। तो थोड़ा-सा अगर हम ये परहेज़ रखें तो काफ़ी हद तक हम इसको रोक सकते हैं फैलने से। तो ये कितना वर्स्ट हो सकता है जो इस चीज़ को कॉमनली बहुत ही कैजुअली ले रहे हैं। आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन माय लाइफ जो बहुत सफ़र कर चुके हैं एक चीज़ से, और ईज़िली जाता नहीं है ये। इट इज़ नॉट ईज़िली गेट्स क्योर्ड अंटिल एंड अनलेस आपका इम्यूनिटी बहुत अच्छा है। तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, अगर थोड़ा-सा हाइलाइट कर पाएँ आप? बिल्कुल, तो फंगल इन्फेक्शन है तो एक दूसरे से फैल सकता है, और क्या होता है स्पेशली इन फीमेल्स बिकॉज ऑफ menstruation, आफ्टर menstruation, इवन ड्यूरिंग menstruation, बिकॉज ऑफ दैट मॉइस्चर द इन्फेक्शन इंक्रीजेस। तो ट्रीटमेंट लंबा चलाना पड़ता है एंड इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी नहीं आता, बिकॉज दोज 5 to 7 days of menstruation, chances of that same infection becoming bigger is more। तो राइट। हम काफ़ी पेशेंट्स स्पेशली जो फीमेल्स होते हैं उनमें ये एडवाइस करते हैं कि आप इसको हल्के में ना लें, बिकॉज़ देयर इज़ वन थिंग व्हिच विल फर्दर एग्रीवेट योर कंडीशन। तो थोड़ा-सा ध्यान फीमेल्स को स्पेशली ज़्यादा लेना चाहिए इस चक्कर। राइट, राइट। डॉक्टर, क्या ओवर द काउंटर मेडिकेशन से भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है? सो बेसिकली इफ समवन हैज़ डिक्रीज्ड इम्यूनिटी, तो अगर वो ओवर द काउंटर कुछ ट्यूब्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें स्टेरॉइड्स हैं, उससे डेफिनिटली व्हेनेवर द बॉडी विल गेट चांस फंगस उसमें पड़ने के चांसेस रहते हैं, अगर उसपे स्टेरॉइड फ्रीक्वेंटली लग रहा और कॉन्ट्रासेप्टिव है। पिल्स, क्या उससे भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं? सो बेसिकली बिकॉज ऑफ सर्टेन मेडिकेशंस, अगर कोई स्टेरॉइड्स ले रहा है उसकी वजह से कुछ कैंडिडियासिस के चांसेस बढ़ सकते हैं। और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, अगर औरतें बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव, क्या उससे भी चांसेस रहते हैं बढ़ने का? ओसीपीएस के केसेस में हम पेशेंट को ऐसे नहीं एडवाइस करते कि वो छोड़ दे, हुँ, हाइजीन की तरफ वो ज्यादा ध्यान दे, बट वी एडवाइस हुँ, देम दिस ओनली बिकॉज राइट। दैट इज समथिंग वी विल नेवर एडवाइस द पेशेंट टू नॉट टेक। साथ में अपना हाइजीन मेंटेन रखें, दैट इज विच इज हुँ, इम्पोर्टेंट। राइट, राइट। मूविंग अहेड डॉक्टर, अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, हमारे व्यूअर की तरफ से सवाल आ रहे हैं ऑलरेडी। हिमांशु बत्रा पूछते हैं, कैन आई क्योर फंगल इन्फेक्शन बाय यूजिंग होम रेमेडीज? No, you cannot. You need to take treatment, proper treatment, yes. Along with the treatment, you should follow certain general measures जो आपको खुद को घर पे ही करने हैं, but antifungal treatment is must to treat this infection. राइट, राइट। डॉक्टर, एक और सिनेरियो आपसे हम जानना चाहेंगे कि कितना वर्स्ट हो सकता है। सपोज अ पेशेंट, ही और शी इज हैविंग सम फंगल इन्फेक्शन इन द प्राइवेट एरिया, वजाइनल फंगल इन्फेक्शन ही मान लेते हैं। उसके ऊपर उस पेशेंट को यूटीआई भी है। तो सिनेरियो कैसा हो सकता है, उसमें थोड़ा ज्यादा पेनफुल होगा? Basically, UTIs and dermatophytic infection are two separate entities. But yes, because of the moisture, the discomfort patient is experience will increase because one
on one side we have this itching, burning over the skin. Then again, patient is having UTI, the discomfort will definitely increase. तो क्या ये फंगल इन्फेक्शन क्योर करने के लिए यूटीआई का भी क्योर होना बहुत ज़रूरी है? दोनों में कोई रिलेशन? Yes, if the patient is having a discharge along with this राइट, fungal infection over groins, then if the area is wet for a prolonged period, then again chances of infection will definitely increase. So treating both the infection will give better results to that patient. राइट। डॉक्टर इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा-सा बात करते हैं हम। हमें पता है कि हैविंग अ गुड इम्यूनिटी इज सो मच इम्पोर्टेंट। अक्सर जितने भी बॉडी कंडीशंस हमें नजर आते हैं, मोस्टली लो इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। तो कैसे हम अपना इम्यूनिटी इम्प्रूव करें? जितने भी लोग अभी सोच रहे हैं कि इतनी सारी बातें हो रहे हैं, पर करें कैसे? क्या खाना चाहिए? कैसा लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए हमें टू हैव अ बेटर इम्यूनिटी? Yes. So first of all, which is like very important, I'm sure सबको पता है कि balanced diet खाना है. They should have जी। diet which has less sugar, less salt, with full of green leafy vegetables, antioxidants, fruits. They should take. Apart from that, they can go for nuts, walnuts, almonds, green teas. They can have. So anything which is home cooked again is very important to improve the immunity. All the packaged food they should cut down. They are the source of decreasing immunity. Apart from this, physical activity, exercise, yoga, meditation, and whatnot. These things must be started in their day-to-day routine. This will help a lot, but definitely the results will not be shown like within a day, within days. Time लगेगा, but result आएगा. जी। डॉक्टर फिजिकल वर्कआउट आप कह रहे हैं, योगा कह रहे हैं आप। क्या ओबेसिटी भी एक कारण हो सकता है फंगल इन्फेक्शन का? Yes, there's one thing. Friction increases this fungal infection. And in obese patient, when there is rubbing of surfaces because of friction, the moisture trapping is more, thus fungal infections are more. So definitely go for weight reduction, go for exercise. It is very important. राइट, राइट। प्लस आज हम फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, पर मैक्सिमम चीज़ें अगर आप देखेंगे, मैक्सिमम बीमारियाँ एक्सेसिव वेट की वजह से हो रहा है, आपकी अनहेल्दी डाइट की वजह से हो रहा है, आपका अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल की वजह से हो रहा है। ऑल्सो वाटर इंटेक, पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम भूल जा रहे हैं समय के साथ। ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, अच्छा लाइफ़स्टाइल, गुड स्लीप एंड अ गुड डाइट। दिस विल मेक योर लाइफ वेरी, वेरी ईज़ी। डॉक्टर एक और सवाल आ रहा है, मीनल वर्मा पूछती हैं, डॉक्टर फंगल इन्फेक्शन कितने टाइप के होते हैं? So basically, on the basis of species, जैसे dermatophytic infection होता है, candida की वजह से candidiasis होता है, ये most common types of infective fungal infections है. और इसके अलावा fungal infection according to site होता है. If it is over scalp, it is tinea capitis. If it is in groins, then it is tinea cruris. Body पे tinea corporis होता है. नील में भी होता है infection, जिसको tinea angum बोलते हैं, onychomycosis कहते हैं. So there are multiple types of fungal infection, and depending upon the cause, we treat the patient. राइट। तो मीनल, आई थिंक आपको अपना जवाब मिल गया है, पर जिस भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो, आपको जाना एक्सपर्ट के पास ही है। आपके नियरेस्ट डॉक्टर के पास ही जाए, ना कि सेल्फ मेडिकेशन चुने। मूविंग अहेड डॉक्टर, एक और सवाल आ रहा है, नितिन राजपूत पूछते हैं, मैम कैन फंगल इन्फेक्शंस अफेक्ट ऑन लंग्स? Okay, so basically there are another type of fungal infection जिसको deep mycosis बोलते हैं. They are basically seen in immunocompromised patients. They are seen in as opportunistic infection. जो जैसे कि किसी को कोई इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन पे है, डायबिटीज है किसी को, उन केसेस में फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं लंग्स के, बट दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट स्पीशी ऑफ फंगस. दिस डर्मेटोफिटिक इन्फेक्शन ये सिर्फ स्किन को ही इन्फेक्ट करती है, ये लंग्स को नहीं इन्फेक्ट करती. वेल डॉक्टर, आज हमने बहुत कुछ जाना फंगल इन्फेक्शन के बारे में। बहुत बेसिक बातें हमने किए हैं आज, और बहुत सारे ऐसी भी बातें की हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। पर
एज वी ऑलवेज से कि ध्यान रखना है चीजों का। इससे पहले डॉक्टर आज हम अलविदा कहें, एनी टेक होम मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स हु हैज वॉच्ड अस सो फार? नेवर सेल्फ मेडिकेट। सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं मेरी तरफ से यही बोलूंगी, प्लीज आप स्टेरॉइड की ट्यूब्स बॉडी पे बिल्कुल ना यूज करें। इफ देयर इज सम स्किन लीजन, कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है, आप स्किन स्पेशलिस्ट से मिले, वो आपका राइट डायग्नोसिस बनाएंगे और आपको राइट ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे। और प्लीज खुद से ट्यूब्स बिल्कुल बिल्कुल मत लगाएं और अपना ध्यान रखें, हेल्दी डाइट, हेल्दी स्किन फॉलो करें। Right, थैंक right. यू। Well, that was Dr. Parul Garg for us. Thank you so much, Doctor, for your valuable time. It has been quite an informative session for our viewers, and we look forward to many more such sessions in coming time. And thank you, viewers, for your excellent participation. For more information and updates on skin health and care, stay connected to our FB page, All About Skin Wellbeing. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you. Stay safe and stay healthy.